আজকের ভিডিওটা খুবই স্পেশাল। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি ইউটিউব বা ফেসবুকে তুমি কিন্তু এরকম কোনো ভিডিও আজ পর্যন্ত দেখোনি। তো আমার ভিডিওটা অসাধারণ লেগেছিলো, তাই ভাবলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করা যাক। তো তোমাদেরও এক্সপিরিয়েন্স খুবই ভালো হবে, সেটা আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি। আমি বৈশালী, আশা করছি তোমরা সবাই খুব খুব ভালো আছো এবং বড়দের ভালোবাসা আশীর্বাদে আমরাও কিন্তু খুব ভালো আছি। তো বড়দের আশীর্বাদ নিয়ে এবং ছোটোদের ভালোবাসা নিয়ে অসাধারণ ভিডিও চলো শুরু করা যাক। তো এটা কোথাকার ভিডিও দেখে তো নিশ্চয়ই এবার বুঝতে পেরে গেছো। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো রেড ফোর্টের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোয়ের, যেটা অসাধারণ এক্সপিরিয়েন্স ছিল। তো কেমন কি ডিটেলস সেটাও কিন্তু শেয়ার করবো। তো তোমরা এই ভিডিওতে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো যেমন দেখতে পারবে এবং ডিটেলসে জানতে পারবে যে তোমরা কীভাবে বুক করবে। যাই হোক, আর বেশি কথা না বলে এবার ভিডিওটা চলো শুরু করা যাক। তো এখন রেড ফোর্টের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো শুরু হবে 10 মিনিটের মধ্যে। এখন 7:35 বাজে। আর তোমাদের একটা ইনফরমেশন সবসময় দিয়ে রাখি, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য জানার। শুক্রবার, শনিবার, রবিবার অর্থাৎ ফ্রাইডে, স্যাটারডে, সানডে দুখানে যে শো হয় সেটা কিন্তু পুরোপুরি হিন্দিতে হয়। তোমরা সোম থেকে বৃহস্পতিবার, মানডে থেকে থার্সডে কিন্তু তোমরা একটা ফার্স্ট শোটা হিন্দি পাবে আর সেকেন্ড শোটা মানে ইংলিশে পাবে। কিন্তু শুক্র, শনি, রবিবার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা কিন্তু অ্যাভেলেবেল হয় না। তোমাকে শুক্র, শনি, রবি দুটো শোই কিন্তু হিন্দি হয়, তুমি চাইলেও কিন্তু ইংলিশে দেখতে পারবে না। এবার ভেতরে তো বলছে ভিডিওগ্রাফি অ্যালাউ নয়। আশা করছি তোমাদের ভিডিও করে দেখাতে পারবো, যদি পারি একটু কিছুটা দেখাতে তাহলে নিশ্চয়ই দেখাবো। তো চলো দেখতে থাকো। লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোতে আমরা তো রবিবার চলে এসেছিলাম। তো অসাধারণ এক্সপিরিয়েন্স ছিল। তো তোমার টিকিটের কথাটা বলে নিই। তো এটা হচ্ছে ভেতরের মানে টিকিট কেটে যে ভেতরের সুন্দর দৃশ্যটা। তো ভেতরের সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে তোমাকে টিকিটের প্রাইসগুলো জানিয়ে রাখি। প্রাইস হচ্ছে একটা আছে 200 টাকা, একটা আছে 500 টাকা, একটা আছে 1000 টাকা, এটা আছে 1500 টাকা। তো 4 রকমের তোমরা কিন্তু টিকিট কাটতে পারবে। আমরা যখন গেলাম তখন 200 টাকাটা কিন্তু বুক হয়ে গেছিলো, আমাদের 500 টাকা করে কাটতে হয়েছিলো। আমরা কোনো আইডিয়া ছিল না, আর অনলাইন থেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে হয় কি হয় না। তো অনলাইনে জানতে পারলাম যে বুক মাই শোতে কিন্তু এই টিকিটটা কাটা হয়। তাছাড়া আমি তোমাদের স্ক্যানার দিয়ে দেবো, স্ক্যানারের মাধ্যমে তোমরা কিন্তু টিকিট কাটতে পারবে। তো আমি পরের দিন রেড ফোর্ট যখন ঘুরতে গেছিলাম সকালবেলা, তখন কিন্তু আমরা সেখান থেকে স্ক্যানার নিয়ে এসেছিলাম, যেখান থেকে আমরা কিন্তু রেড ফোর্টের মানে টিকিটটা কাটতে পারবো। তো তোমরা তো বুঝতেই পারলে যে সোম থেকে বৃহস্পতিবার হচ্ছে প্রথমটা ইংলিশ হয়, যা 6:30 সময় শুরু হয়, তারপর 7:30 সময় হিন্দিতে হয়। শুক্র, শনি, রবি 6:30, 7:30 দুটোই কিন্তু হিন্দিতেই হয়। তো টিকিটের ব্যাপারেও বলে দিলাম, টাইমিংটাও বুঝে গেলে তোমরা। তো তোমার টিকিটের ব্যাপারে তো আইডিয়া পুরোপুরি হয়ে গেল। আর তোমাদের টাইমিং তো বলেইছি, সোম থেকে বৃহস্পতিবার হচ্ছে 4:30 সময় যেটা হিন্দিতে হয়, আর 7:30 সময় ইংলিশ হয়। শুক্র, শনি, রবি দুটোই কিন্তু ইংলিশ হয়, 4:30, 7:30 দুটোই কিন্তু ইংলিশে হয়। ওয়াশরুমের ব্যবস্থা আছে, কোনো রকম কোনো সমস্যা তোমাদের এখানে হবে না। 1 ঘন্টা করে শো হয়, তো তোমাদের অনেকটা টাইম লাগবে। আর এখানে প্রথম কথা ঘুরে ঘুরে প্রথমে একটুখানি হেঁটে হেঁটে প্রথমে শো দেখতে হয়, তারপর বসার জায়গায় তারপর তোমার বসে আরামসে দেখতে পারবে। চলো এবার ভিডিওটা শুরু করা যাক। কারণ ভিডিওটা এমনিতেই বড় হতে চলেছে, কিন্তু আমি গ্যারেন্টি যদি এই ভিডিওটা তোমরা দেখো তোমরা কিন্তু অনেক কিছু দেখতে পারবে, তোমাদের খুবই ভালো লাগবে। और महज 9 सालों में इस किले मुबारक का निर्माण पूरा हो गया है। आज खुद शाहजहां आपका इस्तकबाल और इस किले का उद्घाटन करेंगे।
हिंदुस्तान की नई ताबीर लिखेगा। दिल्ली के लोगों, ये लाल किला मुबारक हो। बादशाह सलामत रहे, बादशाह सलामत रहे। शहजादा दारा शिको, शहजादी जहां आरा और शहजादी रोशन आरा, आप बताएं कैसी लगी हमारे ख्वाबों की ये ताबीर? इस किले पर 1000 सदके अब्बा हुजूर। सच कहूं तो ऐसा लग रहा है जैसे खुदा की जन्नत को अब जमीन पर ले आए हैं। बहुत खूब लाहौरी मियां, आपने जिस हुनरमंदी और मोहब्बत से ये किला तैयार किया है, हिंदुस्तान उसे हमेशा याद रखेगा। जहां पना आपकी खिदमत में पेश है ये लाल किला और ये दीवाने आम। ये सभी आने वाले हर दिन में हर शख्स को आपकी शान और शौकत की याद दिलाएंगे। शहंशाह सलामत रहे, मुबारक हो ये लाल किला। शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे। किताबों के पन्नों के जरिए पढ़ने में और इतिहास के खेल को अपनी आंखों से देखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आज इतिहास आप सबके लिए इतिहास में रहकर हकीकत में बदल जाएगा। अब आप सन 1657 की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए। जिस दीवाने खास पर आप इस वक्त मौजूद हैं, वहीं किसी रोज शिको ने भगवत गीता और कई उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। इसी दीवाने खास में तानसेन का दामाद गण समुद्र अपनी मधुर आवाज में ध्रुपद राग गाकर सबको सम्मोहित कर लेता था। सूरसेन की बीन और सुखसेन की रबाब की मधुर धुन भी सदा यहीं से सुनाई दिया करती थी सल्तनत और पूरे हिंदुस्तान की किस्मत। Dum
में बहुत कुछ बदल गया है। आज हालात कुछ नाजुक हैं, लिहाजा किले में तनाव का माहौल है। जहां वालिद साहब की तबीयत अब कैसी है? अब्बा हुजूर की तबीयत वक्त के साथ बिगड़ती ही जाती है भाई दारा। जैसे ही ये खबर बाहर पहुंचेगी कि बादशाह की तबीयत नासाज है, दुश्मन ताकतें सर उठाने लगेंगी। तख्त की हिफाजत के लिए जंग के मैदान में भी उतरना पड़ सकता है। वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है दारा। कुछ भी हो सकता है, हमें हर मुश्किल के लिए तैयार रहना होगा, चाहे जंग ही क्यों ना हो। दारा शिकोह सभी से अलग था। उसे तो यकीन था कि हिंदू धर्म और इस्लाम के एक होने में ही हुकूमत की भलाई है। दोनों संस्कृतियों के मिलाप के लिए वो हिंदू साहित्य, समाज, संगीत और तौर तरीकों को समझने की पूरी कोशिश में लगा था। शायद यही वजह थी कि कट्टरपंथी औरंगजेब ने खून खराबे के बल पर तख्त को हासिल कर लिया। हिंदुस्तान के तख्त को जीतने के बाद औरंगजेब ने दारा शिकोह का सर कलम तक उसे सुनहरी पगड़ी में लपेटकर अपने अब्बा हुजूर को तोहफे की शक्ल में भेज दिया। औरंगजेब की हुकूमत में लाल किले में संगीत, नृत्य, कविता और कला जैसे हर हुनर पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। इस हुकूमत के अंत के साथ ही पूरी मुगलिया हुकूमत की पकड़ हिंदुस्तान पर कमजोर होती गई। दक्षिण में मराठे, पंजाब में सिख, असम में अहोम और न जाने कितनी जगहों पर अलग अलग बाज ताकतें खड़ी होने लगी। सबकी नजर अब मुगलिया हुकूमत के शाही तख्त पर थी। जहां एक तरफ खतरा फिर दिल्ली की सरहदों पे दस्तक देने लगा था, वहीं दूसरी तरफ सल्तनत पर राज कर रहे मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे पूरी तरह अय्याशी में डुबो दिया था। ऐसी थिंग হয়ে যাচ্ছে এদিকে সবাই ইয়ে হয়ে যাচ্ছে ইয়াসি ভালো না, ইয়াসি ভালো না। ইয়াসি ভালো সবটা মেনটেন করে। फारस से एक ऐसा तानाशाह आया जिसने लाल किले की शान को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। वो तानाशाह था नादिर। उसने दिल्ली की इज्जत को तार तार कर देने के बाद
रंगीला को अपना बंदी बनाइए। मैं हूं नादिर शाह अफसार। लोग कहते हैं मुझे नादिर कुली बेग फारस की तलवार। दिल्ली को मैंने दिल से लूटा है, अब तो बस एक ही तमन्ना है, ये तख्ते ताऊस है, तख्ते ताऊस। आज और अभी से ये तख्ते ताऊस हुआ हमारा, नादिर शाह अफसार का। कहते हैं दिल्ली की लूट को नादिर शाह 700 हाथी, 400 ऊंटों और 12,000 घोड़ों पर लाद कर फारस ले गया था। इसी लूट में शामिल था मुगलों का मशहूर तख्ते ताऊस। कई कीमती रत्नों से बना ये तख्त कभी मुगल सल्तनत की शान की निशानी हुआ करता था। न जाने कितने दिनों तक जली थी ये दिल्ली, पर इस डगमगाती हुई हुकूमत के पास अभी एक और नूर बाकी था, कोहिनूर। वही कोहिनूर जो आज ब्रिटेन में मौजूद है। उस जमाने में कोहिनूर का वजूद महज एक अफवाह थी। अब कैसे न होती। रंगीला ने उसे अपनी पगड़ी की वटों में छुपा कर रखा था। किसी को नहीं मालूम था कि वह कीमती हीरा इसके पास है। सिर्फ एक नूर भाई ही थी जिससे रंगीला का ये राज छुप नहीं पाया था। बदकिस्मती से नूरबाई का रंगीला के अलावा एक और याद था, नादिर शाह। उसने ये राज नादिर को बता दिया। अब नादिर की नजर कोहिनूर पर थी। उसने मोहम्मद शाह को आगरा बुलवाया। पगड़ी बदलने के रिवाज के बहाने हीरे को हासिल कर। खौफनाक हमलों, लूटपाट और लंबे संघर्ष के बाद कभी शाम से खड़ा ये लाल किला अब खोखला हो गया था। 18वीं सदी में मुगल बिखरने लगे थे और सल्तनत कमजोर पड़ती जा रही थी। अफगान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने भी लगातार हिंदुस्तान में कई दिल्ली की सरहदों तक पहुंच गए।
उस वक्त राज कर रहा मुगल बादशाह आलमगीर बस नजीब के हाथों की एक कठपुतली बनकर रह गया और ताकतवर बनने की चाह में उसने आलमगीर कुलबे का कत्ल कर दिया। वो कहां जानता था कि उसकी इस हरकत का जवाब मुगल मराठों के साथ मिलकर देंगे। मदद के लिए आई मराठों की विशाल शक्तिशाली फौज ने किले को घेर लिया। अब नजीब या तो मराठों की हर शर्त मान ले या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। लगता है बारूद के गोलों की बरसात अब रुक गई है। शायद नजीब ने मराठों की सभी शर्तें मंजूर कर ली। मराठों ने आलमगीर को तख्त पर बैठा तो दिया, लेकिन दिल्ली में पेशवा का ही राज था और लाल किला मराठों का हो चुका था। से लेकर लगभग 20 सालों तक मराठे दिल्ली में मौजूद रहे, लेकिन किस्मत ने आसार फेंका और वो भी अपनी हुकूमत दिल्ली में ज्यादा दिन नहीं चला पाए। सुनाई दे रहा है वही भारत के इतिहास में बसी एक दर्दनाक याद को जन्म देने वाली ब्रिटेन से आई ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले भारतीय कहां चुप बैठने वाले थे। जगह जगह विद्रोह की आग भड़कने लगी। नाना साहब, तातिया टोपे, अजीमुल्ला, बांदा का नवाब और झांसी की रानी अब आजादी की जंग के लिए तैयार होने लगे। गुप्त पैगाम कमल और रोटी के जरिए गांव-गांव घूमने लगे ताकि अंग्रेजों को इस बगावत की खबर न लगे। 10 मई 1857 के दिन क्रांतिकारी आजादी का नारा लगाकर मेरठ से दिल्ली की ओर निकल पड़े, बादशाह हिंद को अपने फर्ज की याद दिलाने। बादशाह हिंद यानी कि मुगलिया हुकूमत का आखिरी वारिस बहादुर शाह जफर। बादशाह सलामत रहे। हुजूर, अंग्रेजों की यह कंपनी पिछले 100 सालों से अपने निजी मकसदों के चलते हमारा इस्तेमाल कर रही है। सरहदें तो तब पार हुई जब हमें जबरन राइफल इनफील्ड 54 थमा दी गई। इस राइफल को चलाने के लिए काटेज को मुंह से फाड़ना पड़ता है। काटेज को दांत से फाड़ने का मतलब गाय और सुअर की चर्बी को अपने मुंह से लगाना। और अब बगावत तो होकर रहेगी। आज से हर दिन तक हमारा नाम और हिमायत दोनों हिंदुस्तान के साथ रहेगा।
हम सब एक होकर अपनी जमीन की आजादी के लिए जंग लड़ेंगे। लाल किले से दी गई 21 तोपों के इस सलामी से पूरा शहर जागा। सदियों बादशाही तख्त को अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिली और पूरा देश दुश्मन का सामना करने के लिए एक होकर खड़ा हुआ। आजादी की ये जंग बख्त खान की अगुवाई में लड़ी जा रही थी, जिसे खुद बादशाह ने चुना था। हिंदुस्तानी फतेह के बहुत करीब थे जब बख्त खान ने बादशाह से अपनी अगुवाई में एक आखिरी जंग लड़ने की दरख्वास्त की। बादशाह ने बख्त खान की बात मान तो ली, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके महल में ही अंग्रेजों के वफादार खबरी छुपे बैठे हैं। कोई और नहीं बल्कि उनके अपने परिवार के सदस्य। बदकिस्मती से वो गद्दारों के बहकावे में आ गए और उन्होंने जंग में अपने फर्ज को त्याग दिया। फिर घुस पड़े अंग्रेज लाल किले के अंदर। सैनिकों का जोश टूट गया और वो बिखरने लगे। शाही परिवार हुमायूं के मकबरे में जा छुपा। उन्हीं के बीच छुपे हुए गद्दारों ने बादशाह से आत्मसमर्पण करवा दिया और अंग्रेजों ने मौका मिलते ही लाल किले पर कब्जा कर लिया। दिल्ली में लूट के नजारे थे और अंग्रेज अफसर हॉटसन को अपने कातिलाना इरादों को अंजाम देने का मौका मिल गया था। मेजर विलियम हॉटसन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे इस बगावत को रोकने और राजद्रोहियों के मन में डर पैदा करने के लिए खास ब्रिटेन से बुलवाया। This is Brevet Major Hodgson, and I never let my men take any prisoners, but shoot them at once. Fire! और फिर अंग्रेजों ने लाल किले में चलाया पहला राजद्रोह का मुकदमा। कई शहजादों को फांसी दी, कई इनकलाबियों को मार गिराया। मुकदमे के नतीजे के बाद बादशाह को देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली। कोई यार अब लाल किले पर अंग्रेजों का कब्जा था। इस 1857 की जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अंत हुआ। हिंदुस्तान अब अंग्रेजों की महारानी के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अंग्रेजों ने लाल किले में बने महलों के शाही खजाने को लूट लिया, बेआबरू कर दिया इसे, जैसे किसी जीते जागते इंसान के अंदर से रूह खींच ली हो। 1857 में जो आग देश की आजादी के लिए उठी थी, अंग्रेजों ने उसे दबा तो दिया, लेकिन उस आग ने ज्वाला का रूप ले लिया था। देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए वतन परस्ती की अलग अलग आवाजें उठी। मुल्क में इनकलाब को एक नई दिशा मिली। 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तो लाल किले की अहमियत और उभरी। एक बार फिर वो हिंदुस्तान का प्रतीक बन गया। अब हिंदुस्तानी जानते थे
कि अंग्रेजी हुकूमत को हटाना है तो लाल किले पर भारत का झंडा फहराना होगा। 1941 में हिंदुस्तानियों ने आजादी की तरफ एक और कदम बढ़ाया और आजाद हिंद फौज का जन्म हुआ। हिंदुस्तान की अपनी फौज। इस आंदोलन की शुरुआत की सुभाष चंद्र बोस। We have undoubtedly traveled a long way towards the goal of Swaraj, but complete independence has yet to be won. फौज के सिपाहियों में से लगभग 23,000 शहीद हो गए। कुछ 15,000 को रंगून, बैंकॉक और सिंगापुर से पकड़ कर हिंदुस्तान लाए। नीलगंज, मुल्तान, मद्रास और कई अन्य जगहों पर उन्हें कैद करके उन पर जुल्म ढाए गए। कितनों को तो राजद्रोही करार देकर फांसी के फंदों पर चढ़ा दिया। या फिर घटना स्थल पर ही गोली मारता। यहाँ बराबर में बसे सलीमगढ़ के किले में हुए जुल्म यहाँ के इतिहास का एक दर्दनाक हिस्सा। नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज पर पहला मुकदमा इसी लाल किले में चलाया गया। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों की ये एकता बर्दाश्त नहीं हो रही थी। देश के टुकड़े करने के लिए उन्होंने एक और दांव खेला। मुकदमे के लिए 3 अलग अलग धर्म यानी हिंदू, मुसलमान और सिख से एक सदस्य चुना। लेकिन असर इसका उल्टा। लोगों का संकल्प अब और भी मजबूत हो गया। पूरा देश इन तीनों जवानों के हक में उठ खड़ा हुआ। लाल किले से आई आवाज, सैगल, ढिल्लों, शाहनवाज
फिर सपना साकार हुआ। भारत देश आजाद हुआ। आजादी का तिरंगा बड़ी शान से लहराया गया इस किले पर, इस लाल किले पर। On this historic day, when India accepted slavery as a free and independent dominion of the British Commonwealth of Nations, I thank you all of my greetings and heartfelt wishes. Long years ago, we made a pact with destiny. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इस अमृत काल में एक एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक क्षण मातृभूमि के लिए जीना, तभी 75 साल तक देश को यहां तक पहुंचाने में जिन जिन लोगों ने योगदान किया, उनका पुण्य स्मरण हमें काम आएगा। जय हिंद। বাংলা ভাষা ভারতবর্ষ স্পেলিং কি?
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे রেড ফোর্টের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোটা এখানেই সমাপ্ত হলো। আশা করছি তোমাদের খুবই ভালো লেগেছে। আমার তো জাস্ট অসাধারণ লেগেছে। তো যাই হোক, এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লেগেছে কিন্তু তোমরা জানিও, তোমাদের কেমন লেগেছে তোমরা জানিও। লাইক করতে কিন্তু একদম ভুলো না, এই ভিডিওটা প্রচুর শেয়ার করো, যাতে তোমরা যেমন দেখার সুযোগ পেয়েছো যেন সবাই এই ভিডিও দেখতে পারে। আমার এত ভালো লেগেছিলো, ভাবলাম যে সম্পূর্ণ শেয়ার করবো ডিটেলসে, তাই জন্য কষ্ট করে হলো কিন্তু তোমাদের জন্য এই ভিডিওটা আমি শেয়ার করেছি। তো আজকের মতো এইটুকুই, আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভালো ভিডিও নিয়ে। আর হ্যাঁ, তোমাদের আমি স্ক্যানারটাও দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা এখানে টিকিট কাটতে পারো। তো আজকের মতন টাটা, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। রাধে রাধে।